Okay, I did my MBA from IBA and presently मैं MSHR कर रहा हूँ. In fact मैं उसका final dissertation बना रहा हूँ. It is on leadership. I have got something like more than 25 years of work experience in HR management, media management, marketing, and of course teaching and training. And this is a very diversified field, sector like airline, banking sector, oil and gas sector, FMCG, and things like logistics. So I've got something like a very diversified experience as far as my working experience is concerned. Alhamdulillah, I've been taking care of all HRM, OD and IR. मैं थोड़ा सा आपको OD के बारे में पहले बता देता हूँ. OD में मैंने विजन एक्सरसाइज कराई शाहीन एयर में, हबीब ग्रुप में, एंड आई वाज पार्ट ऑफ द विजन एक्सरसाइज जब सुई सदर्न गैस कंपनी में हुई. ट्रेनिंग्स कराई, कोई 18,000 मैन डेज एक साल में एक कंपनी में ट्रेनिंग करवाई. KPI exercises of performance management system of something like 2,500 executives in an organization, developed HR policies, जिसमें emerging leadership program, synergy, succession planning and all these. ये तो मैंने सिर्फ OD में कराई. And then this is of course some brief about it. HR में HRM में manage something like 11,000 people of an organization, developed online recruiting portals. I was influential in a lot of grievance handling, जहाँ पे लोग कोर्ट केसेस पे ना जा सकें, सो ना जाएं और उसको सॉल्व किया है. IR में I managed one of the most difficult IR of the country. ऑफ सुई सदर्न गैस कंपनी, कोई 2 बिलियन के बराबर हमने चार्टर डिस्कस किया उनके साथ विदाउट कोई लड़ाई. सो आई थिंक आई हैव गॉट अ वेरी डिवर्सिफाइड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ HR and I've enjoyed HR a lot. I came into teaching by chance. So मेरे एक सुपरवाइज़र थे, वो उन्होंने अपनी एक प्रेजेंटेशन बनवाई मुझसे, और वो प्रेजेंटेशन बनवा के जिस दिन की प्रेजेंटेशन थी, जिस दिन की सेशन था, उस दिन उनका एक बोर्ड मीटिंग कॉल हो गया जिसमें उनको जाना था. पूरे जोग्राफिकल लोग आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि कैन यू मेक अ प्रेजेंटेशन. मैंने कहा मैंने बनाई है, मैं कर सकता हूँ. I did that training. ट्रेनिंग हुई, अच्छी हुई, it went well, ख़त्म हो गई. कोई 4 महीने बाद एक बंदा आता है, he walked into my office and says कि sir thank you very much, आपने वो चीज़ एक फ़लाँ चीज़ समझाई थी, मैंने उसको अप्लाई किया and has changed my life. That particular statement actually changed my life also, and then I came into teaching, and every second of it I enjoyed teaching and training. So much so that I incorporated my own organization with the name of Orange Touch, which was a public training organization. I have done corporate trainings in organizations like HBL, National Bank, Pepsi, Siemens, Telenor, and I've enjoyed a lot. I still do teaching because I'm now working somewhere, so I cannot do public programs, I cannot do corporate programs, but I do teach it. I do teach in universities like ICRA and Greenwich. I have taught at IBA and CBM, but presently I'm teaching at ICRA and Greenwich, and I make sure that I go as a keynote speaker in a lot of conferences and workshops because I would love to give back to the nation what I have learned the hard way, because I have made errors in my life. I've learned from it. So I want to help other people not to reinvent the wheel. I've been very fortunate that I've worked in a private company, I've worked in a state organization, I've worked in a multinational, and presently I'm working for a public sector organization.
So I've got a diversified experience, and with my experience, I would rate working in a public sector as the most challenging and hard job. लगता ये है कि बड़ा आसान है पब्लिक सेक्टर में काम करना, ठंड होती है, बट नो, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब. सम ऑफ द challenges आर लाइक सुई सदर्न गैस कंपनी में कि हम लोग हर वक्त कस्टमर की नज़र में हैं. हम लोगों के घरों पे गैस दे रहे हैं, तो और आजकल जैसे हालात है, सर्दियों में गैस की प्रॉब्लम होती है, विच इज़ नॉट predominantly because of us, but since we are the face of gas, तो हमें फेस करना पड़ता है. Then there is a government interventions through the ministry, जिसमें हमें काम करने में डिफ़िकल्टी होती है. गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसके अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट. देन देयर कॉन्स्टेंट जो हमें मॉनिटरिंग कर रही है, वो मीडिया कर रही है. वन मिस्टेक एंड मीडिया जम्प्स इन, उसको फेस करना पड़ता है हमें. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, नैब, FIA, गवर्नमेंट ऑडिट्स, ये सब भी हमें. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट देन end of the day it gives us satisfaction that we are playing a role in fueling the country, because something like 45% of our energy mix in our country is gas. तो अगर ये एक सेटिस्फैक्शन ज़रूर होती है कि हम इस मुल्क के तरक्की में अपना रोल प्ले कर रहे हैं. There are lot of situations in my career जहाँ पे क्राइसिस आया, बट एक मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, जिसमें जब आज से कुछ साल पहले लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हमारे MD हमारे और सीनियर मैनेजमेंट को उठा के ले गई थी ऑन नोन प्लेसेस, एंड द रेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट वाज अंडर, बिल्कुल इस वक्त मॉनिटर किया जा रहा था, और आई वाज वन ऑफ देम. एंड बीइंग द स्पोक्स पर्सन ऑफ द कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेरे ख़िलाफ़ बोल रही थी, एंड इट वाज अ वेरी टफ टाइम. फैमिली प्रेशर्स, फैमिली परेशान थी. मैं पढ़ा रहा था यूनिवर्सिटीज़ में, तो स्टूडेंट्स परेशान थे बिकॉज मेरे नाम से चल रहा था. एट दैट पॉइंट इन टाइम कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया कि हर मुश्किल के साथ आसानी है. और ये एक फैक्ट है कि उस टाइम पे जहाँ मैं बहुत परेशान हुआ, वहाँ पे इस आयत ने बड़ी हिम्मत दिलाई. और हज़रत अली का कौल है कि अगर मुश्किल आए तो मुसीबत जब आती है, या अल्लाह का अज़ाब जब आता है, या अल्लाह का इम्तहान जब आता है, तो इम्तहान वो है जो कि अपने महबूब बंदों के साथ अल्लाह करता है, कि जिसमें बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है. सो yes, thanks to that particular event I went closer to Allah. And also मुझे इस क्राइसिस सिचुएशन में एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि वो सारे जर्नलिस्ट जो मुझे 10 साल लगता उनसे एक रैपो बिल्ड करने में, ड्यूरिंग दैट क्राइसिस जब उन्होंने देखा कि ये आदमी खड़ा हुआ है, फेस कर रहा है सिचुएशन को, तो दे बिकेम गुड फ्रेंड्स. एंड उसके बाद मुझे कभी मीडिया में प्रॉब्लम नहीं हुई. सो आई थिंक जो मुश्किलात आती हैं, अल्लाह हमें इम्तहान में डालता है, बट अल्लाह उसके साथ साथ हमें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है. आफ्टर दैट आई हैव टेकन ऑल क्राइसिस एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब पहली दफ़ा मुझे IBA में कहा गया कि आपने 5 मिनट की प्रेजेंटेशन देनी है, तो मैंने पूरी रात उसकी तैयारी करी. और मैंने ये भी सोचा कि जब कोई सवाल पूछेगा तो मैं कहूँगा कि गुड क्वेश्चन, एंड देन आई विल टेक स्पेस टू आंसर दैट क्वेश्चन. लेकिन जब पूरी रात मैंने प्रैक्टिस की, और जब मैं स्टेज पे आके खड़ा हुआ तो आई वॉज टोटली ब्लैंक, और मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं याद है मुझे. फ्रॉम देयर आई हैव लर्न वन थिंग, कि उसके बाद मैं चला गया और फिर मैंने सोचा कि मैं IBA में नहीं पढ़ता हूँ, बट देन IBA बड़ी मुश्किल से एडमिशन हुआ था, तो मैंने खैर पढ़ना शुरू किया. एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि मैं बोल सकूँ.
लेकिन वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड दैट पब्लिक स्पीकिंग का फेयर जो है उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक हल है, और वो ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आना है और बोलना है। मैं एक दफ़ा एक पब्लिक स्पीकिंग के कॉन्फ्रेंस में था, तो उसमें साथ हमारे मोइन अख्तर मरहूम साहब भी थे। ही वाज आल्सो अ पब्लिक स्पीकर। वो भी उसमें कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। तो हम बैक स्टेज पे बैठे हुए, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मोइन साहब, आपको कभी कोई जब आप स्टेज पे जाते हैं तो कोई फेयर होता है? तो कहते हैं, मोइन अख्तर कहते हैं कि जी मुझे होता है। और मैं उसको कवर करने के लिए, आप देखते हैं कि मैं जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो गाना गा रहा होता हूँ, तो मैं दो काम कर रहा होता हूँ। एक तो मैं अपना फेयर को ख़त्म कर रहा होता हूँ, और दूसरा मैं ऑडियंस को देख रहा होता हूँ कि मैं ऑडियंस के हिसाब से जो भी मुझे जोक्स करना है करें। सो फेयर होना, जब मोइन अख्तर जैसे आर्टिस्ट को फेयर हो सकता है, तो फेयर होना इस मसला नहीं है। मसला ये है कि उस फेयर को कवर कैसे करें। सो एंड आई हैव लर्नड देयर आर लॉट ऑफ ट्रिक्स टू डू इट। आई हैव लर्नड इट। आई एम अ पब्लिक स्पीकर नाउ। आई डू लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस में बोलता हूँ। बट ये यकीन मानिए कि वो डर ज़रूर होता है, लेकिन वो शुरू के आधे एक मिनट होता है, और वो जब कवर हो जाता है तो उसके बाद सब ख़त्म हो जाता है। इस एज में जहाँ इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है, बल्कि इनफैक्ट ओवरडोज्ड है, कि हमें कोई चाहिए जो हमें इस इंफॉर्मेशन को चैनलाइज कर सके। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट अ पर्सन विद द नेम ऑफ शाहिद अली खान इज़ माई मेंटोर। ही हैज़ बीन एन एक्सलेंट पर्सन, जिन्होंने मुझे गाइड किया है पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली, एंड लर्निंग फ्रॉम दैट के what mentor can do for mentoree. I have also been doing mentorship for something like 15 to 20 people, और वो अपनी ज़िंदगी का पर्सनल और प्रोफेशनल फ़ैसला मुझसे पूछ के करते हैं। द आइडिया इज़ कि मैं जो कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने बिहेवियरल साइकोलॉजी को समझा है, उसको समझते हुए मैं लोगों को हेल्प कर सकूं कि वो अपनी ज़िंदगी में सही फ़ैसला करें। मार्क ट्वेन का एक कोटेशन है, और वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग, मैंने वो पढ़ा और उसके बाद मैंने उसको अप्लाई किया अपनी ज़िंदगी में, एंड इट हैज़ चेंज माई लाइफ। वो कहते हैं, ग्रेट थिंग्स हैपन्स इफ़ यू डोंट केयर हु गेट्स द क्रेडिट। सो जब क्रेडिट की आपको फ़िक्र नहीं रहती और आप काम करते हैं, तो यू डिलीवर अमेजिंग थिंग्स। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी की हदीस है, मुझे एग्जैक्ट हदीस तो याद नहीं है, मैं मफ़हूम बता देता हूँ कि हुज़ूर ने फरमाया, जो काम करो कोशिश करो कि एहसन तरीके से करो। ये एहसन तरीका कैन ऑल्सो चेंज योर पर्सनैलिटी, कैन चेंज योर प्रोफेशनल लाइफ। एंड वो कहते हैं ना, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इज़ जस्ट दैट, एक्स्ट्रा. So if we try to put extra thing in everything we do, it becomes our signature product, and you become successful. देखिए, Saturdays are for my friends. I enjoy with my friends, play cards, chat with them. Sundays are for my family. I spend time with my family, and every day after Fajr is a time for myself. So मैं फैमिली को भी टाइम दे रहा हूँ, अपने दोस्तों को भी दे रहा हूँ, और अपने को भी दे रहा हूँ, एंड देन ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन के भी. दैट्स हाउ आई स्पेंड माई वीकेंड्स. See, I think I would like to be a consultant, helping organizations, and of course mentoring to help students, young generation, and keep on doing a lot of training and public speaking. That is my passion. As my vision of life is to develop people, and that is how I think I will be able to develop people. अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम हो अगर वो पूछ ले हमसे.